Assalamu alaikum, everyone. So I'll be the host for this event. So let's start this event. I'll be starting with a small intro of myself. My name is Sara Majid. I am a web developer. I'm also the marketing lead at DSC NEDUET. I am a Microsoft Learn Student Ambassador at Microsoft and technical lead at MLC Karachi. This event is powered by Developer Student Clubs, NEDUET. So starting off, what is Developer Student Clubs? DSC are university-based community groups for students who are interested in Google Developer Technologies. So this platform allows people to learn new technologies, to share their work with other people, and to collaborate with their peers in order to grow their knowledge of Google-related technology. With that, it also gives opportunity to people to devise solutions of real-world problems. What can you expect from this community? We plan to empower others, revolutionize learning, and grow understanding of Google technologies. But the question is, how do we plan to achieve all of this? We plan to conduct workshops, events, boot camps, competitions in a conducive manner. We also plan to include all the people, regardless of what universities they belong to. Like, it's not necessary for you to be part of NED to attend our events, because we want to empower as many people as we can. Thirdly, we plan to bring in professionals, experienced people, and even students who are enthusiastic to mentor other people as speakers. With that, I'm going to present the team of DSC NEDUET. We have Dr. Majida Kazmi, our faculty advisor, who is also a faculty member at NED. We have Muhammad Asadullah, who is the DSC lead at Google Developers. He is also the lead of this community, that is DSC NEDUET. He is the director at APAS Digital, founder at esoftx.ai. He is also a full stack web developer and a data analyst, and he also has understanding of deep learning. With Muhammad Asadullah as our DSC lead, we have our core team, which includes our technical leads, Hamza Shahab and Syed Rafi Hashmi. I am your marketing lead. Then we have Mariam Kazmi as our management lead and Muhammad Arsalan as our media lead. We also have our core team members, which include Faraz Ahmed, Habiba Naeem, Mahnoor Jamal, Maimoon Khan, Muhammad Hassan Rahman, Muhammad Huzaifa Shuja, Muhammad Umar, Najia Gul, Uneza Afridi, Urwa Maqsood, Zaid Akhtar, Muhammad Ibrahim, and Haris Akil. This is our team hierarchy. We have Muhammad Asadullah as our DSC lead, then we have our core team, and then core team members. All of us at DSC, we have the same goals for this community, and we plan to achieve all of this together. With this, we're going to start our event, which is getting started with Angular. We have a very professional speaker, Muhammad Ehsan Ayaz, who will be speaking about Angular. He is a Google Developers expert in Angular, also a senior software engineer. He also runs Node School Karachi and Angular Pakistan. Other than that, he is also an active open source contributor. So he will be leading this event and will be speaking. So over to Muhammad Ehsan Ayaz. Let's begin. So I'm also a Google Developers expert, as I said, but I am a senior software engineer at Klarna. एंड क्लारना एक ऐसी कंपनी है जो कि फिनटेक पे काम करती है या फिर पेमेंट्स पे काम करती है और साथ ही साथ प्रोवाइड करती है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फॉर शॉपिंग. तो यू कैन सिंपली गो टू klarna.com और आपको जो है वो इसकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगी. तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड इन स्वीडन. तो मैं इस वक्त स्वीडन में हूँ और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है स्टॉकहोम, जो कि यहाँ का दारुल खिलाफा है. तो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ. आई हैव अबाउट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट और इसके साथ जो भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड होती हैं. इसके अलावा आई हैव बीन वर्किंग ऑन एंगुलर सिंस द बिगिनिंग. जब इसका 1.1 something आया था, तो सिंस देन. If you want to see any of my work, you can go to github.com/ehsanayaz without any spaces, and you will see ये बहुत अच्छा सा portfolio, profile / whatever you can call it. This is what I usually share for freshies. और इसका
Osama, this is already being recorded, so I think you don't need to do it, और this will be shared with the organizers, जो भी आपके मतलब DSC के organizers हैं, तो I don't think कि हम double कर दें effort, तो it's fine. अच्छा, again I was telling you about the portfolio. So if you're working with, if you're aspiring to be a developer, then make sure that you're working on your portfolio, whether it's LinkedIn, whether it's GitHub, whatever. मैं अपना portfolio जो है वो GitHub को रखता हूँ usually, और मैं usually अपना LinkedIन भी अपडेट रखता हूँ, but मुझे कहीं CV भेजने की ज़रूरत नहीं होती आमतौर पे. मेरा जो GitHub है वो काफ़ी होता है usually. तो a little glimpse of what I've done so far. मैंने Angular का जो core project है उसमें Angular CLI पे contribute किया हुआ है. अगर आपने Ionic का नाम सुना है तो मैंने Ionic की core repository पे contribute किया हुआ है, which means कि अगर आप Angular या Ionic पे काम करेंगे या उसका CLI install करेंगे तो मेरा code भी आपकी machine में आ जाएगा. I've also worked on some libraries जो कि बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस NGX डिवाइस डिटेक्टर एक लाइब्रेरी जो मैंने शायद 2-2.5 साल पहले बनाई थी, और इफ़ यू गो टू दिस पेज एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो आपको नज़र आएगा कि इसके कितने डाउनलोड्स हैं या कितने इंस्टॉल्स हैं. तो इसके अबाउट 4 मिलियंस डाउनलोड है, जो कि तकरीबन 40 लाख होते हैं, और इसके मंथली अगर हम डाउनलोड्स कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3 लाख पर मंथ इसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं. इसके अलावा देयर आर सेवरल अदर प्रोजेक्ट जहाँ आप पीक कर सकते हैं, जैसे एंगुलर ईयर कैलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कि बनाई थी. तो मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो सिर्फ खेलने खालने के लिए बनाई हो. दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में डेली. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू गो टू द डेमो आपको नज़र आएगा कि दिस इज़ व्हाट द कैलेंडर लुक्स लाइक. तो यू कैन कन्फिगर डिफरेंट थिंग्स, यू कैन प्ले अराउंड एंड सी कि किस तरीके से काम करता है. बट having said that, GitHub is something that you would potentially want to do. This is just an advice if you want to go forward and not just like based in Pakistan. Yeah, if you also want to apply abroad, this is what will help you, inshallah. About experts program, this is something जिसके बारे में थोड़ा सा share इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि we still need a lot of experts in Pakistan. I was, I think, the third expert from Pakistan as far as I remember. Yes. तो एक्सपर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है? जिस तरीके से DSC का प्रोग्राम है इसी तरीके से एक्सपर्ट प्रोग्राम होता है, जिसमें गूगल बेसिकली एक्नॉलेज करता है एक्सपर्ट्स को थ्रू डिफरेंट चैनल्स, और उसमें दुनिया में से जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स सेलेक्ट होते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है. बट व्हाट हैपेंस इज कि इसकी एक डायरेक्टरी बन जाती है एक्सपर्ट्स की, और उसमें आप हाईलाइटेड हो जाते हैं जब आप एक एक्सपर्ट के तौर पे रिकग्नाइज्ड होते हैं. एक चीज़ याद रखने की ये है कि ये एक्सपर्ट जो है ये कोई अवार्ड नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गूगल ने आपको दे दिया तो अब आप एक्सपर्ट हैं. इट्स द अदर वे अराउंड. आप एक्सपर्ट होते हैं तो ये आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसका मतलब आपको पहले से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी. ये सिर्फ आपको एक बैच दे देते हैं कि ठीक है आप एक्सपर्ट हैं. जब आप एक्सपर्ट्स में शुमार हो जाते हैं तो यू गेट इनटू दिस डायरेक्टरी. ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान के सारे बेहतरीन एक्सपर्ट्स नज़र आएंगे. आई थिंक वी हैव अबाउट 9. अगर मैं होता तो शायद 10 हो जाते. तो यहाँ पे मेरा नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिंस आई मूव टू स्वीडन तो मेरी लोकेशन के लिहाज से मेरा जो डायरेक्टरी का एंट्री है वो भी चेंज हो गई, तो अब ये पाकिस्तान शो नहीं कर सकते. उसका रीज़न ये है कि जो लोकेशन होती है उसके आसपास वाले ममालिक जो हैं वो आपको रीच आउट करते हैं कि आप आके हमारे पास टॉक दें या वटेवर, या वर्कशॉप कराएं. तो साद वाज द फर्स्ट वन, मशहूद वाज द सेकंड वन, आई वाज द थर्ड वन जो एक्सपर्ट बना. फिर वी हैड इमाद, और फिर ये बाकी बहुत सारे अच्छे से लोग हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में है. तो मशीन लर्निंग, फायरबेस, एंगुलर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी और यहाँ पे कैटेगरीज हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं. तो इफ़ आई गो टू स्वीडन तो आपको मेरी एंट्री यहाँ पे नज़र आएगी. तो वी हैव अबाउट 8 इन स्वीडन. और कुछ इसके बाद फिर शशके हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं गूगल के जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है. तो ये जो इवेंट है ये मेरे ख्याल से 2019 का है या 18 का है, आई एम नॉट इवन श्योर नाउ. आई थिंक 2019 का था ये, और इसमें ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. तो वी ऑल एक्सपर्ट्स वर इनवाइटेड क्योंकि वो इवेंट ही एक्सपर्ट्स का था और सारे एक्सपर्ट्स जमा होते हैं. उसमें कुछ लोग टॉक देते हैं, कुछ लोग तफरी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. तो दिस वाज द एंड इमेज, GD समिट. और GD बेसिकली गूगल डेवलपर्स एक्सपर्ट है.
तो इस सारे झुमघटे में जिसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, आई कैन बी फाउंड हियर, यहाँ पे हाथ दिखाते हुए मुस्कुराते हुए, डेट्स मी। ये मशहूद खड़े में हु इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और ये अहमद अवेस है जो कि एक और एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। तो दिस आर द पीपल दैट यू कैन रीच आउट अपार्ट फ्रॉम योर डीएससी लीड्स। बहुत सारी बातें करने के बाद बात करते हैं एंगुलर की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। और आई कैन सी देयर आर 3 people वेटिंग इन द रूम। आई एम गोइंग टू इनवाइट देम एज वेल और एडमिट देम एज वेल। ऑल्सो टाइप इन द चैट NED के अंदर कौन से ईयर से हैं आप, while I kind of introduce this. ओके, एंगुलर क्या है, क्यों है, किस लिए है? इन दी ओल्ड डेज हमारे पास क्या होता था, हमारे पास सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट होती थी और CSS होती थी और बस, उसके आगे ना कुछ था ना उसके पीछे कुछ था। और हम जो है वो स्टैटिकली फाइल्स वगैरह बना के फिर उसके साथ जो है वो वेब एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर रहे होते थे। ठीक है, तो दैट कैन बी डन राइट नाउ एज वेल। आप बेसिकली सिंपल सा एक प्रोजेक्ट खोलें और उसमें चीज़ें लिखना शुरू कर दें एंड यू विल बी गुड टू गो। फॉर इंस्टेंस आई कैन क्विकली गो एंड क्रिएट अ फाइल हियर, और अगर मैं यहाँ पे HTML, अगर ये HTML की फाइल को रिकग्नाइज कर ले, which I can quickly try by saving this. Let's save this on the desktop rather, and let's say we call it index.html. So essentially this is what you would do. So you can just try HTML or in fact HTML5 and you get this really nice syntax. अब आप यहाँ पे जो है वो scripts add करें या whatever, and you can get a page running. And yep, that's actually pretty much about it. So you can open it right now in the browser and it would work flawlessly. And we have the first web page, the best web page in the world right now. So this is so easy to get something running for the web, and that's why I really love the web. लेकिन Angular क्या है? Angular basically एक framework है जो कि आपको बहुत सारे फंक्शंस और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से। ठीक है, हम क्विकली इसको जंप इन करेंगे कि हम किस तरीके से क्रिएट करें, बट जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एंगुलर से क्या सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनती है या व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। तो एंगुलर से वेब एप्स भी बनती हैं, एंगुलर से क्रोम एक्सटेंशंस भी बनती हैं, एंगुलर से मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनती हैं अगर आप उसको आयोनिक के साथ बना रहे हैं। एंगुलर लर्न करते हुए आपको टाइपस्क्रिप्ट आ जाती है और वही टाइपस्क्रिप्ट आप बैकएंड पे Node.js में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंगुलर वो फर्स्ट फ्रेमवर्क था जिसने ग्लोबली एक्सेप्ट किया था या ग्लोबली इम्प्लीमेंट कर ली थी टाइपस्क्रिप्ट सबसे पहले। उसके बाद फिर Vue.js ने भी की, React ने भी की, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स ने की, बट एसेंशियली एंगुलर वाज द फर्स्ट वन। एंगुलर इज बैक्ड बाय गूगल, और अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या एंगुलर का फ्यूचर है या एंगुलर की जॉब्स हैं या नहीं है। तो ये क्विकली आंसर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था 7-7.5 साल पहले, तो आई वाज टोल्ड कि PHP दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, और आज भी PHP चल रहा है। तो और उसकी जॉब्स भी हैं। PHP छोड़ दें, कोबोल फोर्ट्रान जो ज़माने कदीम की लैंग्वेजेस हैं उसकी भी जॉब्स हैं, और कोबोल और फोर्ट्रान इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई पेड लैंग्वेजेस की जॉब है। तो आई वुड से फजूल की बहस है विच फ्रेमवर्क इज़ बेटर, क्योंकि इट्स अप टू यू, आप कौन सा पसंद करते हैं, आप किसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर आप उससे क्या बनाते हैं। एंड यूज़र जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, जब वो वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एंगुलर पे बनाया है या रिएक्ट पे बनाया है, आपने काम किया होना चाहिए और वो परफॉर्मेंट होना चाहिए। और हर फ्रेमवर्क कोशिश यही करता है कि वो बेस्ट से बेस्ट हो जाए। अगर रिएक्ट कोई अच्छी चीज़ इंप्लीमेंट करेगा तो एंगुलर ये सोचेगा ओके मैं किस तरीके से इसी तरह की परफॉर्मेंस दूं, एंड वाइस वर्सा। तो इट डजंट मैटर व्हिच वन यू चूज। आई वर्कड ऑन बोथ एंगुलर एंड रिएक्ट, तो यप, दैट्स इट। अच्छा जी, अब किस तरीके से स्टार्ट करें और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, और अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इंस्टॉल होता है। सिंस दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, मैं क्विकली जाके डाउनलोड कॉल ऑफ ड्यूटी आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड, डाउनलोड Node.js
तो आप डाउनलोड Node.js करेंगे तो आपको इसकी जो है लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो आपके पास गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आप डाउनलोड गिट देखेंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड Node.js तो हमें सबसे पहले Angular CLI जो है वो इंस्टॉल करना होता है अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। वो किस तरीके से इंस्टॉल होता है, जब आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और आप ये कमांड लिखेंगे npm install -g Angular CLI। I'm going to zoom this a bit actually, ताकि ये सारे के सारे पेजेस जो हैं वो थोड़े से इनर हो जाए, ठीक है। तो what you can do is you can do npm install -g Angular CLI, और ये आपके पास Angular CLI को इंस्टॉल कर लेता है ग्लोबली। और CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एंड व्हाट यू कैन डू विद इट इज आप सिंपली जाके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी नोड पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं एंगुलर CLI के थ्रू, या फिर एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू राइट नाउ इज हम जाएंगे और हम डेस्कटॉप के एक फोल्डर के अंदर, जो कि है कंट्रीब्यूशंस का फोल्डर, इसके अंदर हम एंगुलर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये पूरी जो टॉक है ये थोड़ी सी रैंडम चलेगी, और इसका रीज़न ये है कि आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग, आई लाइक टू गो ऑन द गो। तो वील चैट और हम साथ साथ इसको बना भी रहेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड। यहाँ पे जूम के अंदर एक फीचर होता है रेजिंग हैंड का, एंड देन वील टेक इट एट द एंड, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे बैच जो है वो ओपन कर लिया, और अब हम जो है वो एंगुलर को इनिशिएट करेंगे। एंगुलर CLI जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि आप ng वर्जन लिखेंगे, तो आपके पास एंगुलर का जो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ब्ला 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 ब्ला। तो मेरे पास 10.0.7 इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम बोलते हैं ng new। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ng new से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स एक्चुअली क्लोज दिस वन, और फिर हम बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो लेट्स से हम बोलते हैं ng app, कीपिंग इट सिंपल। उसके बाद हमारे पास वेटिंग रूम में कोई हैं जिनका नाम है English X1, तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू इनवाइट अंटिल यू नो दिस पर्सन। तो ng new ng app कर दिया हमने, और उसके बाद हम नाम बता चुके हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ फ्लैग्स इसको प्रोवाइड करता हूँ जिससे हमारी डेवलपमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाती है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली वो फ्लैग्स क्या हैं, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस रख रहे होंगे, तो उन मल्टीपल पेजेस के लिए मैं राउटिंग पहले से इनेबल कर देता हूँ डैश राउटिंग से। और दूसरा ये कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम CSS यूज़ करें सीधी सीधी, या हम SCSS यूज़ करें जो कि सबसेट है और सुपर सेट है उसका CSS का। तो हम उसको स्टाइल SCSS से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या स्टाइल इक्वल्स SCSS वट एवर यू प्रोवाइड, लेकिन आप स्पेस देके जो भी वैल्यू देंगे तो वो इसको चली जाएगी, ठीक है। तो हम ng app क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से। आई थिंक इफ़ यू डोंट डू इट, और इफ़ यू जस्ट प्रेस एंटर, ये खुद आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, और नहीं पूछेगा, नो नहीं पूछेगा। तो लेट्स डू ng app एंड देन ng new ng app, हम बोलेंगे इसके साथ राउटिंग और स्टाइल SCSS। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड पूरी फाइल्स आपके इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगी, और आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से बंडल हो जाएंगी। उसमें आपके पास HTML भी होगी, उसके अंदर आपके पास हल्के फुल्के कंपोनेंट्स भी बने हुए होंगे, और उस पर फिर हम बात करेंगे कि हम आज क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे मोर लेस। तो ओके, देयर इज वन मोर टू एडमिट। अच्छा जी, तो ये फाइल्स क्रिएट कर लेता है। नोटिस द पैकेज जेसन जो यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसकी बेसिस पे ये जितने भी इससे रिलेटेड पैकेजेस हैं या डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर लेता है। अब हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो हम अपनी ng ऐप को VS कोड पे खोल लेते हैं। लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स ट्राई टू रीलोड। तो हमारे पास ये सिचुएशन है इस वक्त। गोइंग टू जूम दिस अ बिट ताकि आप सबको नजर आए। I'm going to take this out here. Just give me one sec. Yes.
ठीक है जी, तो हमारे पास VS कोड पे ये प्रोजेक्ट खुल गया। अगर आपके पास VS कोड नहीं है इंस्टॉल तो मेक श्योर टू डू इट, क्योंकि आई रियली लाइक इट और आई थिंक ये इस वक्त सबसे लाइटेस्ट और अच्छा एडिटर है, व्हाटएवर। तो जब आप VS कोड खोल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे व्यू के अंदर एक जगह लिखा हुआ होता है टर्मिनल, जिससे ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी खुल जाता है। तो आई फाइंड इट ईजियर टू वर्क विद। अच्छा, जब आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके ng सर्व करना होता है, या आप npm स्टार्ट भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर। तो आई एम गोइंग टू गो विद ng सर्व, जिससे क्या होता है कि यही प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है ये ब्राउजर पे चलना शुरू हो जाता है विद ऑटो रीलोडिंग। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता रहा हूँ क्योंकि आई गॉट टू नो कि बहुत सारे बिगिनर्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं या सेकंड ईयर के भी हैं, तो हो सकता है उनको ये नहीं पता हो, लेकिन आई डाउट अब तो आपको खैर सभी पता होता है। तो हियर वी गो, ये एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है। और ये वो चीज़ है जो आज से 5-6 साल पहले अगर हम इमेजिन करते तो अजियत था ये, लेकिन नाउ इट्स वेरी गुड। तो हमारे पास सब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल गया। अब हम जो है वो अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अब हम जाएंगे हमारे लोकल होस्ट 4200 पे, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट एक्चुअली। हमारे पास एक ऐप है जिसके अंदर स्टाइलिंग भी हुई है, जिसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिवनेस भी है, जिसके अंदर एक डमी कंटेंट भी है और जिसके अंदर एक्चुअली कुछ कंपोनेंट भी मौजूद है। ठीक है, तो इफ़ यू ट्राई टू इंस्पेक्ट इट, और अगर आप इसको चेक करेंगे डिफरेंट जगहों से या डिफरेंट रिस्पॉन्सिव स्टॉप्स पे, तो यू विल फाइंड इट वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये सब क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो स्टार्टिंग विद जो ये HTML का स्ट्रक्चर है, एंड आई होप आप सबको HTML का आइडिया होगा, तो आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू दैट। बट होता क्या है कि हमारी जो HTML की बॉडी होती है उसके अंदर हमारा जो सबसे टॉप लेवल का कंपोनेंट होता है एट द वेरी टॉप, वो इंजेक्ट होता है, जिसका नाम है ऐप रूट। ठीक है, तो इस ऐप रूट के अंदर बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, बट दिस इज द वेरी टॉप कंटेनर, या हम इसको रूट कंटेनर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रूट कंटेनर बेसिकली आ कहाँ से रहा है। तो हम वापस अपने कोड में जाते हैं और अगर हम इसकी फाइल्स देखें तो हमारे पास है सोर्स के अंदर index.html होती है, ये मेन फाइल है, और यहाँ पे ऐप रूट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ऐप रूट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ऐप रूट के अंदर पूरी दुनिया है। तो एंगुलर बेसिकली इस ऐप रूट के अंदर सारी की सारी चीज़ों को इंजेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐप रूट कहाँ से आ रहा है। तो इन सोर्स फोल्डर हमारे पास ऐप का फोल्डर होता है और इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स और सारी सर्विसेज वट एवर वी वांट टू क्रिएट, वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो हम अगर ऐप के अंदर इस HTML को देख लें, या इनफैक्ट HTML से पहले भी इस ऐप कंपोनेंट TS को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है ऐप डैश रूट। हर कंपोनेंट का एक नाम होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक बहुत ही बड़ा बंगला है और उसके अंदर आप दाखिल होते हैं, तो फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 10 कमरे हैं, तो हर कमरे का कोई ना कोई नाम अगर हम रख दें 3D 4D 5D वट, तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन सा रूम है। सिमिलरली हर कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होता है जो कि हम HTML के अंदर यूज करते हैं, और यही ऐप रूट बताता है कि हम क्या यूज करेंगे असल में इंस्टेड ऑफ द सिलेक्टर। तो हम अपनी HTML में जाके सिर्फ ऐप रूट लिखेंगे और एंगुलर खुद से इस ऐप रूट की जो टेम्पलेट है, जो कि इस फाइल में पड़ा हुआ है टेम्पलेट URL में, उसको डाल देता है व्यू पे। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये जाता है ऐप रूट से ये जाता है ऐप कंपोनेंट में, यहाँ जाके देखता है ओके ऐप रूट का सिलेक्टर ये है, तो इसका मतलब हम इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। फिर इस सिलेक्टर का टेम्पलेट कहाँ है या इसकी HTML कहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसकी HTML ऐप कंपोनेंट HTML में है, जो कि ये रही। तो ये यहाँ पे जाता है और फिर ये जो पूरी दुनिया पड़ी हुई है यहाँ पे, ये इस सब को इंजेक्ट कर देता है हमारे HTML के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये रहा बैनर, ये रहा मेन, और यही कोड हमारा यहाँ पे है। ये रहा रोल बैनर जो कि टूल बार था, और ये रहा हमारा रोल मेन। सही है, तो ये दो HTML यहाँ से हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पूरी एप्लीकेशन के। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा हो सकता है, दूसरे के अंदर तीसरा हो सकता है। तो हम क्विकली कुछ चीजें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको विद इन द टाइम लिमिट जो हमारे पास है हम उसमें कवर करें। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम एक थर्ड पार्टी API के साथ इंटीग्रेशन करें।
अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए दिस सेशन में, तो टाइप इन द चैट और मैं देख लेता हूँ और वी कैन एनालाइज इट कि ये बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस है या व्हाटएवर, ठीक है। क्योंकि इसका कोई आई डोंट हैव एनी प्लान, तो आई विल गो विद व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। बट फॉर स्टार्टर्स वी आर गोइंग टू गो विद सम काइंड ऑफ कंपोनेंट। तो सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो पूरी साइंस हुई है, हम इसको जो है वो रिमूव कर देंगे। तो अब अगर हम अपने पेज पे जाएंगे तो यू सी नथिंग, सही है। और हमारे पास एम्प्टी है बिल्कुल। तो हमारे पास बेसिकली ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एक सिंपल सा राउटर आउटलेट है। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। अच्छा जी, हाउ डू वी क्रिएट अनदर कंपोनेंट? जब भी आप सर्व करते हैं तो सर्व वाली जो आपकी टैब है कमांड प्रॉम्प्ट की, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते। हम जाते हैं एक और नया टैब क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास दो हो गए। तो एक पे हमारी एप्लीकेशन सर्व हो रही है और दूसरे पे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। जब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना होता है तो हम कहते हैं ng generate, सही है, या ngg शॉर्ट से। फिर हम कहते हैं कंपोनेंट, या इससे भी शॉर्ट जाएंगे तो nggc, c का मतलब कंपोनेंट, और फिर हम कंपोनेंट का नाम बताते हैं, ठीक है। फॉर नाउ हम बेसिकली सिर्फ ये काम करेंगे कि हम एक काउंट की वैल्यू रखेंगे और एक काउंटर यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हम लेट से एक काउंटर का कंपोनेंट बना रहे हैं, सही है। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होंगे कि एंगुलर किस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, तो लेट्स से हमने ये काउंटर ले लिया और इसको हमने कर दिया क्रिएट, और साथ में कुछ और करना है नहीं करना, तो हमने nggc काउंटर कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने 4 फाइल्स क्रिएट की उस कंपोनेंट की, और फाइनली उसने ऐप मॉड्यूल में अपडेट कर दिया, सही। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे ओके, सही है, गुड है, एडवांस लग रहा है तो वेरी गुड। अच्छा, हर कंपोनेंट जो हम क्रिएट करते हैं वो बेसिकली जाता है ऐप मॉड्यूल में। यानी कि इट्स लाइक अगर आपके पास एक बंगला है और उसमें कोई नया बंदा आता है और बहुत बड़ा बंगला है, तो उसमें उसको नहीं पता कि कौन सा रूम किस चीज़ का है, तो व्हाट यू वुड हैव इज आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा या डिज़ाइन होगा जिसके अंदर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि ये कमरा यहाँ है, ये जिस तरह मैप होता है। इसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट कहाँ है या उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो ब्लूप्रिंट है या उसका जो मैप है वो होता है ऐप मॉड्यूल में। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो एंगुलर आके देखता है, यानी कि हर एप्लीकेशन एक मॉड्यूल है, सही है। उस मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर सर्विसेज भी होती हैं और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। बट एसेंशियली आप इसको माइंड में रखें कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक एंट्री पॉइंट जो एप्लीकेशन का होता है वो होता है मॉड्यूल। इसके अंदर हमारे पास काउंटर कंपोनेंट भी आता है, इसके अंदर हमारे पास ऐप कंपोनेंट भी आता है, यानी कि सारी डिक्लेरेशंस यहां पे होती हैं, सही है। दिस इज नॉट समथिंग जो आपको याद रखने की जरूरत है, लेकिन जस्ट क्यूरियोसिटी कि हम जब ये nggc काउंटर कर रहे हैं तो ये फाइल तो क्रिएट हुई, लेकिन इसका क्या हुआ, ये क्यों अपडेट हुई? तो ये इसीलिए अपडेट हुई क्योंकि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री डिक्लेरेशंस में करना जरूरी है, वरना एंगुलर को नहीं पता चलेगा कि काउंटर कंपोनेंट क्या है, ठीक है। एंड आई कैन एक्चुअली शो यू कि ये फेल हो जाएगा अगर हम इसको रिमूव करेंगे। बट राइट नाउ हम क्या करेंगे, हम ऐप कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट ng कंपोनेंट, इट वाज कॉल्ड काउंटर, तो ऐप काउंटर, सही। अच्छा जी, अब ये ऐप काउंटर कहाँ से आ गया, और हमने तो काउंटर क्रिएट किया था, ये क्या हो रहा है, अजीब सी बात। तो आप जाएंगे काउंटर में और इसके ts फाइल जो होती है कंपोनेंट की, आप इसको खोल लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इसका सिलेक्टर जो है वो ऐप काउंटर है। ऐप एक ऐसी चीज है, या ऐप डैश वो चीज है जो एंगुलर खुद से ऐड कर देता है जस्ट टू मेक इट यूनिक, सही है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आप जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसके पीछे ऐप लगाना जरूरी है फॉर नाउ। अच्छा जी, हर कंपोनेंट के 4 हिस्से होते हैं। एक होता है उसका टेम्पलेट, यानी कि उसकी HTML कि वो कैसा दिखेगा। दूसरा होता है उसकी CSS या SCSS, जहां पे आप उसके स्टाइल लिखते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तीसरा होता है जो मेन चीज है, उस कंपोनेंट की जावास्क्रिप्ट फाइल या टाइपस्क्रिप्ट फाइल, जहां हम उसके वेरिएबल लिखेंगे, उसकी कंप्यूटेशंस लिखेंगे, उस पर क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा वो लिखेंगे। यानी कि फंक्शनैलिटी जो है वो उसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में होती है, टेम्पलेट उसका HTML में होता है, और स्टाइलिंग उसकी SCSS में होती है या CSS फाइल के अंदर होती है।
और फाइनली हमारे पास spec.ts है जो कि टेस्ट फाइल होती है अगर हमें कोई यूनिट टेस्ट या यूनिट टेस्ट लिखना हो इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। अच्छा, हमेशा एंगुलर जब जंप इन करता है और देखता है कि कौन कहां से आ रहा है, मैं आपको क्विकली एक डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। आई होप दिस विल रियली वर्क यू, रियली हेल्प यू, नॉट वर्क यू। हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे होता है रूट कंपोनेंट, सही है। उसके बाद हम अगर कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लेट से हमने क्रिएट किया काउंटर, ठीक है, तो वो काउंटर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा। कल को हम जाके जो है वो एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, फॉर सम रीजन हमें शौक है, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर लेट से हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि काउंटर के अंदर यूज हो रही है, तो फिर वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो, लेकिन अभी समझ आना शुरू होगा। तो हम रूट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास काउंटर है, रूट के अंदर लेट से ये काउंटर के बजाय इसको कुछ और भी हम बोल सकते हैं। लेट से हम इसको बोल देते हैं वर्जनर लेट से, ठीक है। इसी तरीके से ये भी समझना है कुछ और है, काउंटर 2, काउंटर 4, व्हाटएवर, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम एंगुलर की बात करते हैं, इनफैक्ट अगर हम HTML की बात करते हैं, तो HTML इज बेसिकली वर्किंग ऑन अ ट्री। लारावेल की तरह लग रहा है जो कि PHP का एडवांस है। काइंड ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, पूरी वेब डेवलपमेंट के अंदर आप जहां भी जाएंगे आपको सिमिलर चीजें नजर आएंगी, बट एसेंशियली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमारे पास रूट कंपोनेंट है, रूट के अंदर मैं काउंटर लिख सकता हूं, तो काउंटर इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम HTML की बात करें तो HTML भी इसी तरीके से होती है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर ऐप रूट है, यानी कि बॉडी का एक ही चाइल्ड है जो कि है ऐप रूट। फिर हमारे पास उसके अंदर राउटर आउटलेट नजर आ रहा है आपको, और आपको ऐप काउंटर नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ऐप काउंटर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसकी भी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। रूट है, रूट के अंदर हमारे पास काउंटर है जो कि ये नजर आ रहा है। अगर मैं काउंटर के अंदर मजीद कंपोनेंट्स लिखूंगा तो वो उसके ट्री के अंदर ऐसे जाते रहेंगे और ये बेसिकली बिल्डअप होता है और हमें व्यू पे नजर आता है। अच्छा जी, हम एक कंपोनेंट को दूसरे के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने बताया कि ये ट्री होता है, तो ट्री इसी तरीके से होता है कि हमारे पास टॉप लेवल चीज होती है, फिर उसके अंदर मजीद मजीद बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते रहते हैं, ठीक है। लेट से हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा वर्जन कंट्रोलर से। तो हम यहाँ पे ngGC वर्जन कंट्रोल, लेट से एक नया हमने फंक्शन बना लिया वर्जन कंट्रोल, और नॉट फंक्शन कंपोनेंट, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया वर्जन कंट्रोल में। इसकी भी वही सारी फाइल्स हैं और इसका सिलेक्टर क्या है, ऐप वर्जन कंट्रोल, ठीक है। अगेन फ्रॉम द टॉप अगर हम चलें तो सबसे टॉप पे index.html, उसके बाद ऐप रूट जो कि है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर, इसका टेम्पलेट है ऐप कंपोनेंट HTML जो कि यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे और हम यहाँ पे ऐड करेंगे द सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हायरार्की चल रही है, रूट और उसके अंदर दो चीजें, और दोनों सेम लेवल पे जो कि है ऐप काउंटर और ऐप वर्जन। तो अगर हम अपनी वेब पे वापस जाएं तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास दो चीजें हैं, काउंटर और वर्जन कंट्रोल। तो अगेन अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो ऐप रूट है और ऐप रूट के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई और ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों चिल्ड्रन हैं ऐप रूट के, जस्ट टू मेक इट क्लियर। ओके, अब हम ये काउंटर वर्क जो लिखा हुआ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो ऐप काउंटर के अंदर लिखा हुआ है काउंटर वर्क्स, इसका मतलब है कि ऐप काउंटर का जो टेम्पलेट होगा उसके अंदर ये काउंटर वर्क्स नजर आएगा हमें। तो हम चले जाते हैं काउंटर के अंदर, काउंटर के अंदर ये इसकी मेन फाइल होती है, जैसा कि मैंने बताया इसका टेम्पलेट कौन सा है, काउंटर कंपोनेंट HTML जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है काउंटर वर्क्स, ये रहा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं लेट्स से DSC GDs, और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली रीलोड होके हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, सही। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास हम क्विकली डेवलप कर सकते हैं विद एंगुलर और हम इसके कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे ऐसे चलेंगे कि भाई ठीक है हमने टेम्पलेट बना लिया, हमने CSS लिख ली, ब्ला ब्ला ब्ला, अब हम क्या क्या करें, मतलब ऐप तो हमें बनानी है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम इस काउंटर कंपोनेंट की हल्की फुल्की सी थोड़ी सी तशकील करेंगे और देखेंगे ये कैसा लगता है। तो व्हाट वुड हैपन इज के हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML का, और जो बेसिक बिल्कुल HTML देख रहे हैं वो शायद एंजॉय करेंगे, और जो थोड़े से एडवांस है उनको भी शायद कुछ टिप मिल जाएंगी। VS कोड के अंदर इफ यू टाइप डॉट और आगे आप क्लास का नाम लिखेंगे, लेट्स से मैं बोलता हूँ काउंटर, और टैब दबाते हैं तो वो खुद ब खुद उसका एलिमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है, जस्ट अ स्मॉल टिप। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे डिजिट, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स CSS यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल CSS यूज करूंगा और उसको लिख भी रहूंगा, तो डोंट जज मी ऑन दिस वन, ठीक है, आई कैन डू मच बेटर देन दिस। तो हमारे पास लेट से एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा डिजिट। फिर हमारे पास कुछ बटन्स होंगे जो कि होगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट का, ठीक है। तो मैं 3 बटन्स क्रिएट करूंगा, तो मैं इसको क्लास दे रहा हूँ बटन्स की, और मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, बूम, हमारे पास 3 बटन्स आ गए, ठीक है। पहले वाले को हम बोलेंगे इंक्रीमेंट, दूसरे वाले को हम बोलेंगे रीसेट, और तीसरे वाले को हम बोलेंगे डिक्रीमेंट। और जो काउंटर है इसके अंदर जो डिजिट है, यहाँ पे हमारे काउंटर की वैल्यू आ रही होगी। बाय डिफॉल्ट इसको हम 0 रख देते हैं, लेकिन इसको हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ बट मेकिंग इट डिव्स, एक्चुअली लेट्स ट्राई टू मेक इट बटन। तो हम बटन डॉट लेट्स से बटन क्लास इसको नाम दे देते हैं, और इसके 3 एलिमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, और हम यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीमेंट, रीसेट, डिक्रीमेंट। इंस्टेड ऑफ डिव बटन यूज करना ज्यादा बेहतर है, ताकि हम इसको इजीली देख सके। अच्छा जी, ये हमारे पास क्रिएट हो गया कोड, और अब हम जो है अगर इसका व्यू देखें तो हमारे पास ये 0 आ गया, इंक्रीमेंट, रीसेट, डिक्रीमेंट आ गया। थोड़ा सा एप्लीकेशन को खूबसूरत बना लेते हैं, और उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारा ये जो दोनों डिव्स हैं इसको हम एक और डिव के अंदर रैप कर लेंगे। इसको हम लेट से बोल देते हैं कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमने ये दोनों एलिमेंट्स डाल दिए। अब इस कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं, तो इसकी क्लास कंटेनर है, स्टाइल्स यहाँ जाते हैं .scss में, तो हम यहाँ पे इसको लेट से बोल देते हैं लेट से मार्जिन 40 पिक्सल ऑटो, ठीक है, और हम यहाँ पे इसकी मैक्स विड्थ दे देते हैं जो कि हम दे देंगे लेट से 600 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये एलिमेंट जो हमने बनाया है ये काइंड ऑफ सेंटर में आ गया है, ये इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट। इसके लिए कोई गाइड बुक बता दें, इसके लिए मैं कुछ गाइड बुक्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कहानियां भी पड़ी हुई है। मजीद कुछ अच्छा कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास सारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा, खूबसूरत, देयर वी गो, ठीक है। तो हमारे पास काउंटर आ रहा है और हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। अब हम ये करेंगे कि ये काउंटर जो है ये अभी हार्ड कोड किया हुआ है हमने अपनी HTML में, यानी कि ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, पत्थर की लकीर हुआ हुआ है। इसको हम किस तरीके से चेंज करें? चेंज करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना होता है, सही है। एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास हर कंपोनेंट का, जिस तरह मैंने बताया, 3 से 4 चीजें होती हैं जो कि उसके साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। पहली चीज जो है वो उसका टेम्पलेट होता है, और दूसरी चीज जो है वो उसका कंपोनेंट फाइल होती है या उसके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं, अगर हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं व्यू, और अगर हम बात कर रहे हैं उसके वेरिएबल्स की तो उसको हम कहते हैं मॉडल, ठीक है। एंगुलर फॉलो करता है समथिंग कॉल्ड MVW या MVW, ठीक है। MVW क्या होता है? MVW होता है मॉडल व्यू व्हाटएवर, सही है। तो बेसिकली हमारे पास होता यह है कि एंगुलर के अंदर ये सपोर्ट होती है कि आप व्यू पे जो देख रहे हैं टेम्पलेट पे, अगर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज चला जाएगा मॉडल की तरफ। आई कैन डू बेटर देन दिस, वो चला जाएगा मॉडल की तरफ, और अगर हम मॉडल में कुछ चेंज करें तो वो चला जाएगा व्यू की तरफ, और ये ऑटोमेटिकली होता है या ऑटोमेटिकली होता है। तो होता क्या है, मॉडल में हमारे पास सारे के सारे पड़े हुए होते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस। दिस वुड एक्चुअली आई थिंक द बेस्ट वर्कशॉप जो अभी तक शायद मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इतना डेप्थ में आज तक मैंने कभी बताया नहीं किसी को, व्हाटएवर। और यहाँ पे हमारे पास होता है टेम्पलेट, या जिसको हम कहते हैं HTML, ठीक है।
तो होगा क्या, हम वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हैं मॉडल में, और हम वो फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज करते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। तो मॉडल कहां पे बनेगा, मॉडल हमेशा बनेगा कंपोनेंट की टीएस फाइल के अंदर, जो कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है। सही है, ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड होगी, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड ट्राई टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, फॉलो इट, और आप देखेंगे कि आप सेम एप्लीकेशन बना रहे होंगे जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बट व्हाटएवर, हमें अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम इस क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली एक क्लास है जिसका नाम है काउंटर कंपोनेंट, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम होगा काउंटर वैल्यू। सही है, अगर हम सिर्फ इतना लिखें तो ये वैल्यू या ये वेरिएबल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं या नहीं करते। चले, सबसे पहले हमने ये ले लिया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को अगर हमें टेम्पलेट के अंदर यूज करना है तो एंगुलर का तरीका ही होता है कि जहां पे HTML के अंदर आप इसे यूज करें, अगर आप काउंटर वैल्यू यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पे एग्जैक्टली काउंटर वैल्यू टेक्स्ट की तौर पे आ जाएगा, लेकिन हमें ये वेरिएबल यूज करना है अपनी कंपोनेंट टीएस फाइल का, यानी कि इसको इस्तेमाल करना है यहां पे। तो उसके लिए हम इसको रैप कर देते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव करता हूं तो मेरे पास गायब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस काउंटर वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ के कंट्रोल क्लिक करूंगा तो इसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 से असाइन कर दूंगा। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये 0 यहाँ पे आ गया। तो ये जादू। Nabia is asking where can we get this workshop? तो this is being recorded, और ये recording most likely share होगी मेरे YouTube पे। तो what I would do is कि I'll share the link with the organizers and then you can all get it. ठीक है। Oh, I also have a YouTube channel. Forgot to mention that. उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं. Go and subscribe. Not right now. Focus on the workshop at the moment. JK लोहाना कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो? If yes, then I'll admit him. Otherwise, I won't. अच्छा, तो there we go. अच्छा, ये जानते हैं आप लोग? Okay, admitting him or her, whatever. तो we've got this setup. नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको इंक्रीमेंट कैसे करें, रीसेट कैसे करें और डिक्रीमेंट कैसे करें। तो उसके लिए हमें बनाने होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे जब फंक्शन हमें क्रिएट करना होता है तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। जब आप कोई नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे तो आप कैसे करते हैं, आप करते हैं फंक्शन, आप बोलते हैं माई फंक्शन नेम, या और आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्रिएट करते हैं। जब आप किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेथड। हम उसको फंक्शन भी कहते हैं लेकिन हम उसको मेथड ज्यादा कहते हैं क्योंकि मेथड ऑफ अ क्लास होता है। तो हम ये वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ नाम बताना होता है फंक्शन का, एंड दैट्स इट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट का, एक फंक्शन हम बनाएंगे डिक्रीमेंट का, और एक फंक्शन हम बनाएंगे रीसेट का। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी नो। तो हमारे पास ये 3 फंक्शन बन गए। अच्छा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे void लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप बताते हैं कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे इन तीनों फंक्शन से, तो हम कह रहे हैं ये void है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मेन कॉन्टेक्स्ट है जिसपे हमें फोकस करना है कि इस फंक्शन के अंदर क्या होगा। सही, हमारे पास एक वैल्यू है काउंटर वैल्यू। जब भी हम किसी क्लास के साथ काम करते हैं तो क्लास के अंदर जब हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो उसको हम एक्सेस करते हैं दिस डॉट करके। तो ये इंक्रीमेंट जब हम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं दिस, नॉट द कैपिटल दिस, विच मीन्स कि हम रेफर कर रहे हैं दिस क्लास को या इसके इंस्टेंस को, डॉट काउंटर वैल्यू। आप देखें खुद ही से आ गया, इसकी बेहतरीन किस्म की इंटेलिजेंस है। ये पुराने जमाने में नहीं होती थी, एंड आई हैव बीन थ्रू द डिजास्टर, जब हमें खुद देखना पड़ता था कि हम कोई टाइपो तो नहीं कर रहे या व्हाटएवर। दिस डॉट काउंटर वैल्यू को हम बढ़ा देंगे 1 से, तो हम बोलेंगे दिस डॉट काउंटर वैल्यू प्लस 1। बिल्कुल जावास्क्रिप्ट 101 में जा रहा हूं मैं, डोंट जज मी ऑन दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, काउंटर वैल्यू को जो भी पहले उसकी वैल्यू थी उससे बढ़ा के एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, काउंटर वैल्यू 1 बढ़ जाएगी जब हम इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल करेंगे। सेम गोज फॉर डिक्रीमेंट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेम कोड होगा, बिकॉज आई लाइक कॉपी पेस्टिंग, और फिर हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो जो भी इसकी पहले वैल्यू थी काउंटर वैल्यू की, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, और जब हमें रीसेट करना होगा तो हम काउंटर वैल्यू को वापस से सेट कर देंगे 0 पे।
तो लेट्स सेट इट बैक टू 0। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, हमने 3 फंक्शंस बना लिए। अब जाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। इंक्रीमेंट, रीसेट, डिक्रीमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा। वाई? क्योंकि हमने इन फंक्शंस को बाइंड नहीं किया हुआ अभी अपनी बटन्स के साथ। तो हमने ये फंक्शंस क्रिएट कर लिए जो कि पार्ट है कहाँ का, मॉडल का। ठीक है, तो मॉडल में हमारे पास फंक्शंस क्रिएट हो गए, लेकिन उसको टेम्पलेट में कौन इस्तेमाल करेगा? तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम जाते हैं वापस से अपनी HTML में, ये रहे हमारे बटन्स। अब हमें इन बटन के क्लिक हैंडलर पे उन फंक्शंस को बाइंड करना है। तो वो हम कैसे करते हैं? हम स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं ऑन द बटन, और उस पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं। जैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है वैसे ही ID एट्रीब्यूट होता है, वैसे ही यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है क्लिक। ठीक है, लेकिन इसको हम एट्रीब्यूट नहीं कहते, इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो हम क्लिक इक्वल्स और यहाँ पे हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था? इंक्रीमेंट। तो आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ गया। ये एक मेथड है, तो हम क्विकली इसको कॉल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसी तरीके से हमारे पास मजीद 2 फंक्शंस भी बाइंड होंगे। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रीसेट को, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे डिक्रीमेंट को। ठीक है, तो ये हमने अपना टेम्पलेट भी बाइंड कर दिया। अब अगर हम जाके यहाँ पे खेलना शुरू करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रही हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही है, और रीसेट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो टू सोर्सेस। आप सोर्सेस में जाएं, आप यहाँ पे Ctrl+P करें, आप यहाँ पे लिखें counter.component.ts, ये यहाँ पे आ जाएगा, और आप यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगाएं और आराम से खेलते रहें इसके साथ। इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन के अंदर आ जाता है। फंक्शन के अंदर दिस डॉट काउंटर वैल्यू क्या है? 0 है। 0 में ये प्लस कर देगा 1, तो ये हो जाएगी 1 हो गई, और हम प्ले करेंगे तो ये सेट टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली डिक्रीमेंट करेंगे तो ये दूसरी जगह पे आएगा। काउंटर वैल्यू 1 थी, इसमें से माइनस करेगा 1, अब वैल्यू हो गई 0, प्ले। इसी तरीके से आप जितना चाहें खेलते रहें। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ और ये ब्रेक पॉइंट पे आता है, तो यू कैन सी द कॉल स्टैक। ये जो कॉल स्टैक है ये बताता है कि ये फंक्शन कहाँ से आया है, पीछे क्या क्या कॉल होता आया है, तब ये यहाँ पहुंचा है। तो ये लेटेस्ट स्टेप है, इसके पिछला स्टेप ये रहा। तो यू कैन एग्जैक्टली सी कि जब हमने डिक्रीमेंट पे क्लिक किया तो पहले वो इस स्टेटमेंट पे आया, इसने देखा कि ये फंक्शन कॉल करना है मुझे, और फिर यहाँ से वो पहुंचा है यहाँ पे। तो जस्ट अ स्मॉल टिप टू सी के फंक्शंस कहाँ से कॉल हो रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से होते हुए आए। ठीक है जी, तो ओके, एक इंक्रीमेंट, वेरी गुड। इंक्रीमेंट, आप में से कोई बता भी नहीं रहा मुझे, नॉट गुड। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये काउंटर की एग्जाम्पल पूरी हो गई। तो अब मुझे चैट में बताइए, हाउ आर यू फीलिंग सो फार अबाउट द वर्कशॉप? और इन द मीन टाइम मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पी लूँ क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूँ। Type in the chat what do you think about the workshop so far. बहुत सब समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, कुछ ऊपर से नहीं गया, साइड में दूसरा टैब खोल के YouTube वीडियो देख रहे हैं या व्हाट्सएप? ओके, अब सवाल, एक्सप्लोर AngularJS so far in 1 hour. ओके, गुड। सही है। अब मुझे ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने एक चीज़ अभी देख ली जो कि, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है डेटा बाइंडिंग का जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हमारे पास जिस तरीके से मैंने आपको इस पेंट की खूबसूरत सी तस्वीर में बताया कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग। उसमें क्या होता है कि हम ये जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ना काउंटर कंपोनेंट में, ये वाला, इसको हम अभी चेंज कहां से कर रहे हैं? इस फाइल से, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल से, जो कि मॉडल की फाइल होती है, ये टेम्पलेट नहीं है। यहां से हम चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली चली जाती है HTML पे, यानी कि ये वाला स्टेप हुआ जो यहाँ पे है कि हमारे पास मॉडल में कुछ चेंज हुआ तो ये जाके व्यू में रिफ्लेक्ट हो गया। ये एंगुलर का जादू है। यही काम जब हमें jQuery से करना होता था या जावास्क्रिप्ट से करना होता था तो हमें अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता था कि हम पहले वो एलिमेंट उठाएं, फिर हम जाएं और उसमें पुट करें, ब्ला ब्ला ब्ला। एंगुलर ये काम खुद से कर लेता है बिहाइंड द सीन्स। लेकिन एक और मजे की चीज ये है कि अगर आप
चाहें तो कुछ चीजें व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, वो व्यू का चेंज जाएगा मॉडल में और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा व्यू में। अब ये कैसे हो सकता है, तो इसको हम क्विकली चेक करते हैं कि हाउ टू डू दिस। इसके लिए हम बेसिकली काम ये कर सकते हैं कि हम एक इनपुट ले लें, सही है, और हम लेट से या लेट्स ट्राई टू डू इट इन द वर्जन कंट्रोल एक्चुअली। ठीक है, इन द वर्जन कंट्रोल हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक डिफ क्रिएट करेंगे, फिर हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे, सही है, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और फिर हम नीचे एक पी टैग क्रिएट करेंगे जिसमें हम बताएंगे वर्जन टू बी सबमिटेड। लेट्स से आप एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी के मेंटेनर हैं और आप जो है ना यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि अब मेरी लाइब्रेरी का अगला वर्जन ये है, सही। तो इसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली लेट्स से वो वर्जन प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। अगर हम इसको व्यू पे जाके क्विकली चेक करें, ओके देयर वी गो, ओके ये काफ़ी भद्दा लग रहा है। तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं ऐप कंपोनेंट में जाके ये जो दो हमारे चीज़ें हैं इसको काइंड ऑफ स्प्रेड आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो व्हाट आई डू इज़ मैं यहाँ जाके ऐप वर्जन कंट्रोल का स्टाइल लिख के इस पर बस कुछ मार्जिन टॉप लगा रहा हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल। ओह दिस विल नॉट वर्क, वाई? क्योंकि इसका डिस्प्ले ब्लॉक नहीं है। देयर वी गो, ठीक है, खूबसूरत। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि यहाँ जो वर्जन लिखा जा रहा हो वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए किसी तरीके से। तो जो टू वे डेटा बाइंडिंग की बात है उसमें हम अभी एक एग्जांपल ये करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे वर्जन का जो कि होगा मॉडल में। हमने अब तक ये देखा है मॉडल में कुछ भी चेंज करो तो टेम्पलेट में जाके ऑटोमेटिकली ठग से चेंज हो जाता है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि उस मॉडल की वैल्यू हम फंक्शन में चेंज ना करें बल्कि हम टेम्पलेट से चेंज करवाएं, यानी कि व्यू में चेंज करें और वो कहीं से जाके रिफ्लेक्ट होके वापस मॉडल में जाए और फिर टेम्पलेट में आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है। तो आई विल शो यू हाउ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्जन कंट्रोल की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जैसे हमने वहां वेरिएबल क्रिएट किया था हम इस क्लास के अंदर लेट से वर्जन नंबर का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम बोलेंगे 0.2 लेट से, ठीक है। अब इस वर्जन नंबर को मुझे अपने टेम्पलेट में यूज करना है तो मैं सिंपली जाऊंगा HTML में और यहाँ जाके बजाय इस हार्ड कोडेड वैल्यू के आई कैन यूज माई वेरिएबल लेकिन विद कर्ली ब्रेसेस एज आई मेंशन, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.0.2 आ रहा है, ये हमारे पास वही मॉडल से आ रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इनपुट पे कोई वैल्यू चेंज करूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये वर्जन नंबर में एग्जैक्टली वही चीज आ जाए एज आई एम चेंजिंग इट, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दैट? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एनजी मॉडल का जिससे हम इनपुट में जो भी चेंज हो रहा है या इसकी वैल्यू जो हम सेव करा रहे हैं उस वैल्यू को हम बाइंड कर दें किसी वर्जन नंबर से। सो व्हाट आई वुड डू इज मैं यहाँ पे यूज करूंगा एनजी मॉडल, ठीक है। और एनजी मॉडल के बाद आई कैन गिव इट दिस वर्जन नंबर। अब ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक काम करना होता है जो कि हमने नहीं किया हुआ, और वो ये होता है कि हम इंक्लूड करते हैं अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर फॉर्म्स का मॉड्यूल। तो एनजी मॉड्यूल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो एंगुलर बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं करता जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास ये पैकेज पहले से इंस्टॉल होता है फॉर्म्स का। तो हम इसमें से फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने मॉड्यूल के इंपोर्ट्स में। तो जस्ट समथिंग दैट यू शुड नो, आप वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्म्स मॉड्यूल इंक्लूड कराते हैं तो हमारे पास एनजी मॉडल काम करने लग जाता है। ब्लैक, दैट्स व्हाट वी हैव। तो हमारा एरर चला गया, कंपाइल सक्सेसफुली, वापस से अपने टेम्पलेट में जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ रही है वर्जन नंबर, ओके। And this is where things go wrong. ng model, let's see. Oh, it was ng model change, sorry, my bad. So we have this one. हमारे पास यहाँ पे ng model है, and see you can always Google template कहाँ है इसका,
ऐप हीरो फॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, हमारे पास वैल्यू है, ओ ये दिस इज व्हाट वी हैव, सॉरी माय बैड। तो इसका सिंटेक्स जो है वो ये है बेसिकली, लेट्स सी, देयर वी गो। ठीक है, हमारे पास 0.0.2 आ गया और इसका सिंटेक्स अगेन जो है वो ये है कि आप ब्रैकेट लिखते हैं, फिर उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, एनजी मॉडल लिखते हैं और वर्जन नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है, मॉडल से व्यू पे चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन क्या मैं अगर व्यू में कुछ चेंज करूं तो क्या वो मॉडल में रिफ्लेक्ट होगा? होगा। तो एज यू कैन सी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता जा रहा हूं, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूं, इस इनपुट की वैल्यू चेंज होती है। इनपुट की वैल्यू चेंज होती है तो वो चेंज कर देता है वैल्यू ऑफ वर्जन नंबर, वो जाता है कंपोनेंट में और इस वर्जन नंबर की वैल्यू चेंज कर देता है। जैसे ही कंपोनेंट के अंदर वैल्यू चेंज होती है या इसके मॉडल में वैल्यू चेंज होती है, ये वापस आता है और फिर यहां पे वैल्यू रिफ्लेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट एंगुलर डज बिहाइंड द सीन्स। तो इसका यूसेज क्या है, अब इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूं भाई? तो अज्यूम कि आपके पास जो है वो फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक के अंदर हमारे पास टॉप राइट पे एक हेडर होता है, या अगर मैं GX डिवाइस डिटेक्टर गिटहब ब्ला 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 ब्ला, अगर हम हेडर की बात करें, इनफैक्ट ये रहा ना, हमारे पास ये प्रोफाइल इमेज है। ठीक है, टॉप राइट पे फेसबुक पे क्या होता है, जब आप वॉल पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है और वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू से टुडे ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहां पे भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, हो सकता है 10 जगह और भी आ रही हो। तो व्हाट एनजी मॉडल या एंगुलर सपोर्ट्स यू इसके, आप एक जगह पे उस वेरिएबल को रखें और आप उसको पूरी एप्लीकेशन में यूज कर लें। तो अगर मैं जाकर इस वर्जन नंबर को यहाँ 10 जगह भी लिखूंगा तो वो सारी जगह सेम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और मैं एक जगह चेंज करूंगा तो वो सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि आपको एक जगह वेरिएबल रखना है और आप उसको पूरे टेम्पलेट में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी आप किसी एक जगह पे उसको चेंज करेंगे तो वो मल्टीपल जगहों पे भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो आई होप डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से फॉर्म की वैल्यू को डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि हम फंक्शंस को किस तरीके से बाइंड करते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी पीसी कॉन्सेप्ट है इस्तेमाल करने का। ठीक है, अब हम अपने लास्ट जो हमारा टास्क है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा सिंपल रखें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं। अभी तक हमने जो हजम करने की कोशिश की है उसमें हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स की, किस तरीके से कंपोनेंट्स काम करते हैं, किस तरीके से हम उन पे फंक्शंस फाइंड करते हैं, और एनजी मॉडल को किस तरीके से इस्तेमाल करें इस तरह के सिनेरियो में जहां हमें व्यू पे वैल्यू चेंज करनी हो और वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए कंपोनेंट के अंदर, वहां से बैक। अब हम एक काम ये करेंगे जो शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और जिसके लिए आप ये वीडियो वापस देखेंगे, और वो ये है कि हम किस तरीके से एक HTTP कॉल करें और रिमोट डेटा लाके अपने पास दिखाएं। सही है, हाउ डू वी डू दैट? तो उसके लिए लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस रैंडम यूजर मी API। तो हमारे पास ये एक थर्ड पार्टी API है जिसके अंदर क्या होता है, ये आपको एक रैंडम यूजर देता है। जब भी आप इसकी API को हिट करते हैं तो आपको एक रैंडम डेटा देता है। ये हम किस तरीके से देखें इसको, अगर हम चले जाएंगे इसकी API में, ओह इन्होंने साइन अप करवा दिया है, रियली, इंटरेस्टिंग। और इज इट, नो, लेट्स सी, आई डोंट थिंक साइन अप की जरूरत है। यस, तो ये वो URL है जिस पे अगर मैं हिट करूंगा तो मुझे एक डेटा मिलेगा, और ये हर दफा चेंज होगा। जैसे अभी मेरे पास जो हजरत आए हैं वो है मिस्टर जॉर्डन विलियम्स। मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अब आई है मिस नेटेली मोरेरा, हुएवर शी इज। ठीक है, तो ये हमें हर दफा एक रैंडम यूजर वापस करता है। ठीक है, अब हम चाहें तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि हम मल्टीपल यूजर्स भी एक साथ ला सकते हैं, लेकिन हम एक वक्त में एक अगर ले आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो व्हाट शुड वी डू टू गेट दिस? अच्छा, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है क्रोम की, इफ यू वांट टू यूज इट, मेरे ख्याल से जेसन ब्ला 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 समथिंग व्यूअर के नाम से है ये, तो इसलिए मुझे ये डेटा बहुत क्लीन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नजर आता है आपके ब्राउजर पे जब आप देखेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एनीवेज, लेट्स गो बैक। तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, सही। अब हम बात कर रहे हैं हाउ
हाउ डू वी मेक HTTP कॉल्स, हम डेटा दूसरी जगह से कैसे लेकर आए। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। हमारे पास सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपका टेम्पलेट, जो कि है व्यू, फिर होता है आपका कंपोनेंट, फिर होता है आपका कोई सर्वर जहां से आपको डेटा लाना है, और फिर हम बात करते हैं कि बीच में क्या आएगा। तो ये आपका व्यू है, या जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास जो सेकंड चीज है, दिस इज योर मॉडल कंपोनेंट, और या लेट्स कीप इट कॉल मॉडल। फिर हमारे पास यहां पे जो है वो थर्ड पार्टी API, जहां से हमें डेटा लेकर आना है, सही। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, व्यू जो डेटा लेने जाता है वो जाता है मॉडल से। मॉडल जो है वो डायरेक्टली कभी भी थर्ड पार्टी API से बात नहीं करता। हमारे पास उसके लिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, किसी को पता है हम क्या कहते हैं? I'm gonna give 1 minute to type in the chat. क्या चीज आएगी यहाँ पे जो कि मॉडल और थर्ड पार्टी दरमियान होगी? In the meantime, I'm going to cut this क्योंकि now I'm feeling hungry. जी, any guesses? कंट्रोल, कंट्रोल कह सकते हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया कंट्रोल, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग इट। इसको हम मॉडल नहीं कहते, इसको हम कंट्रोलर कहते हैं। थैंक यू। इसको हम मॉडल कंट्रोलर भी कह सकते हैं, हमको कंट्रोलर भी कह सकते हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। ओके, व्हाटएवर कुड बी अ गेस बट नो, इसको हम कहते हैं एक्चुअली सर्विस। तो जब भी हमें डेटा की बात करनी होती है तो पहले व्यू से जाता है टेम्पलेट पे, टेम्पलेट से रिक्वेस्ट जाती है सर्विस पे, वेयर इज द डाउन एरो, ठीक है। सर्विस जाएगा और बात करेगा आपकी थर्ड पार्टी API से। अगर हम चाहें और हमें कोई बहुत ही शौक है तो हम कंट्रोलर से भी थर्ड पार्टी API कॉल कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन इनकरेज नहीं है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, और एंगुलर बाय डिजाइन भी नहीं है। फ्रेमवर्क है एंगुलर लाइब्रेरी नहीं है। रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है छोटी सी, एंगुलर फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, यस यू आर राइट, MVC में कंट्रोलर इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडल। यस, मॉडल बेसिकली वेरिएबल का नाम होता है, और कंट्रोलर जो है वो जगह होती है जहां पे आपका मॉडल एग्जिस्ट करता है। तो इट्स गोना बी कंट्रोलर नॉट मॉडल। तो हमारे पास हम बात कर रहे थे किस चीज की, हम बात कर रहे थे कि अगर आप चाहें तो HTTP कॉल जो है वो कंट्रोलर से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर से करना रिकमेंडेड नहीं है, उसके लिए सर्विस होती है। सर्विस जाएगी थर्ड पार्टी API पे, सर्विस जाके थर्ड पार्टी API से डेटा वापस लेकर आएगी, थर्ड पार्टी API से डेटा वापस आएगा तो सर्विस से वापस जाएगा कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर से वापस जाएगा टेम्पलेट पे। ठीक है, ये फ्लो कुछ समझ आ रहा है कि हमें अगर कुछ व्यू पे दिखाना है, या हमें ये जो डेटा दिख रहा है ये अगर हमें व्यू पे दिखाना है तो हमें लाजमी तौर पे इस फ्लो से गुजरना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोलर से स्टार्ट होगा, या कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा सर्विस को, सर्विस रिक्वेस्ट करेगी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी से डेटा वापस आएगा सर्विस पे, सर्विस से वापस आएगा टेम्पलेट पे, और फिर हम दिखा रहे होंगे। सही है, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? उनेजा अफरीदी इज लेट टू द पार्टी बट आई एम एडमिटिंग हर। अच्छा जी, तो देयर वी गो। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसको गेट कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास कंट्रोलर मौजूद है, लेकिन हमारे पास सर्विस नहीं है अभी तक कोई भी। तो उस सर्विस के लिए हम कुछ जादू करेंगे। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ कंपोनेंट फॉर दिस यूजर, ताकि हम इस यूजर को शो कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने कोड में वापस जाएंगे, सारी फाइल्स को क्लोज करेंगे, यहाँ से भी सब कुछ बंद कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट्स अभी कौन कौन से मौजूद है। काउंटर है, वर्जन कंट्रोलर है। अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूजर। तो हम जाएंगे ngGC यानी कि एंगुलर जनरेट कंपोनेंट, और इसको हम कहेंगे यूजर। तो हमारे पास यूजर का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देयर वी गो। अब इस यूजर को हम इस्तेमाल करेंगे अपने यहाँ कंटेनर में, यानी कि अपने ऐप कंपोनेंट के HTML में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे ऐप यूजर। ठीक है, इससे हमारे पास एक बहुत अच्छा सा मैसेज आ जाएगा जो कि बोलेगा ऐप यूजर वर्क्स और समथिंग लाइक दैट। यूजर वर्क्स ये रहा। तो यहाँ पे हमें यूजर दिखाने हैं, या यूजर दिखाना है जो हम यहाँ से ला रहे हैं। सही है।
तो अभी हमारे पास सिर्फ एक डमी टेक्स्ट है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है यूजर वर्क्स, लेकिन हमें यहाँ एक्चुअल यूजर चाहिए किसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेप है कंट्रोलर का, यहाँ की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे यूजर कंपोनेंट में और यहाँ जाके हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे यूजर का, जैसे हमने पहले बात की थी। बाय डिफॉल्ट हम इसको नल रख रहे हैं, तो हम इसको फिल वक्त शो नहीं करेंगे, और हम जाकर इसी, या इनफैक्ट हाँ इसको ऐसे ही रखते हैं, और इसको हम अपने यहाँ टेम्पलेट में यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये नल है, इसको अभी मैं हार्ड कोड करके अगर चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ एहसन अयाज, लेट्स सेव इट। तो हमारे पास हमारे टेम्पलेट पे ये एहसन अयाज आ रहा है लिखा हुआ। I'm going to quickly do some styling changes। तो मैं ऐप कंपोनेंट CSS में जाके इसको 100 पिक्सल कर दूंगा, और हम इसमें ऐप यूज़र को भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास दोनों में थोड़ी सी गैप आ रहा हो। तो अब हमारे पास कुछ गैप आ रहा है 100 की मार्जिन का, ठीक है। अच्छा जी, गोइंग फॉरवर्ड, अब हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया अपने यूज़र के कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम हमने रखा है यूज़र, सही है। या इसको हम यूज़र इन्फो भी बोल सकते हैं या व्हाटएवर, इसको लेट्स कॉल यूज़र इन्फो। यहाँ यूज़र इन्फो कर देंगे तो हमें HTML में भी जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, एरर दे रहा है, ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, तो लेट्स से कॉल इट यूज़र इन्फो, सही। देयर वी गो, हमारा एक स्टेप डन हो गया जो कि है कंट्रोलर में डिफाइन करना कि इसका वेरिएबल क्या है। अब हम सर्विस क्रिएट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, हम कहते हैं ng सर्विस, सही है। और इसके बाद हम बेसिकली सर्विस का नाम बताते हैं, तो मैं इसको बोलूंगा यूजर सर्विस। सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ यूजर एंड दैट्स इट। जब हम इसको क्रिएट कर देते हैं तो हमारे पास दो फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, एक सर्विस की फाइल और एक इसकी टेस्ट फाइल, ठीक है। ये सर्विस की फाइल क्रिएट हुई है यहां पे, ये रही यूजर सर्विस, ठीक है। अगेन जिस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट एक क्लास होता है, जैसे आपने देखा यूजर कंपोनेंट एक क्लास है, इसी तरीके से हमारे पास सर्विस भी एक क्लास होती है। लेट्स कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट स्टेप, हमें इस सर्विस से जाना है थर्ड पार्टी एपीआई पे और डेटा लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम HTTP यूज करते हैं। तो हम HTTP यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कराया था, वैसे ही हमें यहाँ पे HTTP क्लाइंट, ओके लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट होगा फ्रॉम, ओहो, और यहाँ पे होगा एंगुलर कॉमन HTTP, और हम यहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल को हमें बेसिकली इंपोर्ट कराना होता है, और डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप जब बाद में वीडियो देखेंगे तो आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हम अपने इंपोर्ट्स की एरे के अंदर ऐड कर देते हैं। नाउ वी कैन बिल्ड अवर सर्विस। अब हम अपनी सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं HTTP क्लाइंट को, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली बोलेंगे इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर कॉमन, कॉमन HTTP, और यहां से हम इंपोर्ट करते हैं HTTP क्लाइंट, सही। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस HTTP क्लाइंट की हम एक इंजेक्टेड वर्जन ऑफ इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको इग्नोर कर दें, देखें कि क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर में हम यहां पे लिखते हैं प्राइवेट HTTP और यहां हम लिखते हैं HTTP क्लाइंट, सही है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसलिए अभी मैंने अब्दुल कवी ने जो क्वेश्चन पूछा वो ये कि अगर मैं सर्विसेज में क्रिएट करना हो तो क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस यूजर से पहले सर्विसेज का पाथ दे दें, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, तो सर्विसेज का एक फोल्डर बन जाएगा जो कि रहा ये, और इसके अंदर हमारे पास फाइल आ गई। अगर आपको मजीद सर्विसेज के अंदर यूजर के अंदर चाहिए, जो कि मैं यूजुअली करता हूं, तो आप सर्विसेज /यूजर कर देंगे, तो आपके पास यूजर्स का भी फोल्डर बन जाएगा सर्विसेज के अंदर, और उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। अच्छा जी, बट यस डिलीटेड। अच्छा जी, तो हमारे पास
फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने इंपोर्ट किया HTTP क्लाइंट को। सेकंड स्टेप क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर में हमने HTTP डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे गेट यूजर फ्रॉम API। सही है। ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न करेगा यूजर, या ये फंक्शन जाके HTTP कॉल करेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं दिस डॉट HTTP, जो कि ये प्राइवेट HTTP हमने ऐड किया था, डॉट गेट, यानी कि हम गेट की कॉल कर रहे हैं। और अब हम कॉपी कर लेंगे हमारी इस लिंक को, तो हम यहाँ पे गेट के अंदर दे देंगे इस लिंक को, और फिर हम यहाँ पे बेसिकली कर देते हैं, या इनफैक्ट इसको हमें यहाँ से रिटर्न कराना है। सही। ये यहाँ पे रो क्यों रहा है, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप डेफिनेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं ऑब्जर्वेबल एनी फॉर नाउ, बट ओके। अच्छा जी, तो इस सिंटैक्स की टेंशन ना लें, इस चीज पे फोकस करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन रिटर्न करता है HTTP गेट ऑफ दिस URL। ठीक है, सिर्फ इतना ही हमें चाहिए होता है कॉल करने के लिए। तो हमारे पास अब जो सेकंड स्टेप हमने किया है वो ये किया है कि हमने अपनी सर्विस डिफाइन की है, और सर्विस के अंदर हमने ये वाली जो कॉल है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये कर दिया है। ओप्स, नॉट दिस वन बट दिस वन। ये स्टेप हमने कर दिया है कि कॉल करो थर्ड पार्टी API को। थर्ड पार्टी API से जब डेटा वापस आएगा तो उसको हम रिटर्न भी करा रहे हैं कंट्रोलर पे। सही है। तो हमने यहां से रिटर्न लिख दिया, जिससे ये सर्विस का डेटा वापस जाएगा कंट्रोलर में। द ओनली प्रॉब्लम इज कि कंट्रोलर कुछ भी नहीं कर रहा अभी उस डेटा का। हम यहां से जो वापस रिटर्न कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम वापस अपने कंट्रोलर में जाएंगे, जो कि है user.component। हमने यूजर सर्विस क्रिएट की, और यूजर सर्विस के अंदर हमने इस HTTP सर्विस को यूज किया इन द कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली जब आप एक सर्विस को दूसरी सर्विस में, या एक सर्विस को कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करना होता है इस तरीके से, जो यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है। इसके बारे में आप एंगुलर पे और पढ़ सकते हैं, लेकिन ये HTTP क्लाइंट एक सर्विस है, इसीलिए इसको हम यूजर सर्विस के अंदर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसको इंजेक्ट कराना पड़ता है लाइक दिस। सिमिलरली अगर इस यूजर सर्विस को मुझे यहां कंपोनेंट के अंदर यूज करना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा लाइक दिस। तो हम इसको कहेंगे यूजर सर्विस, लेट्स से, और हम यहां पे कॉल करेंगे यूजर सर्विस को। तो सिर्फ सिंटैक्स और वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम सर्विसेज, ये रहा यूजर सर्विस, और इस यूजर सर्विस का नाम है यूजर सर्विस। ठीक है, तो ये सारे एरर्स वगैरह फिक्स हो गए। तो अब हम इस यूजर सर्विस को यूज कर रहे हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। अब हम चाहते क्या हैं, जैसे ही हमारा पेज लोड हो, जब हमारी एप्लीकेशन लोड होती है, तो सबसे पहले हर कंपोनेंट का जो फंक्शन ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है या ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, वो फंक्शन होता है ng on init। हम कैसे मान लें भाई, हम यहाँ पे console.log लगा लेंगे और बोलेंगे I am telling the truth। सही है। तो अब अगर हम कंसोल पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है I am telling the truth, और ये आ रहा है यूजर कंपोनेंट से। तो बेसिकली जैसे ही कोई चीज व्यू पे आती है, कोई कंपोनेंट व्यू पे आता है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है ओके सही है, ये कंपोनेंट व्यू पे आ चुका है। ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसे ही ये व्यू पे आएगा तो मुझे डेटा मंगवाना है, तो उस पॉइंट के लिए ये फंक्शन है जिसके अंदर मुझे अपना कोड लिखना है। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कंसोल लॉग के बजाय मैं बोलूंगा दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर फ्रॉम API। ये वो फंक्शन है जो हमने यहां बनाया है इस क्लास के अंदर। तो हम गेट यूजर फ्रॉम API कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ये यूजर सर्विस रिटर्न करता है कुछ डेटा यूजिंग एन ऑब्जर्वेबल। ये सिंटेक्स है जो मैं यूज करूंगा, इसके बारे में आप एंगुलर पे बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये सिंटेक्स होता है रिस्पॉन्स का। और मैं यहाँ पे console.log कर लूंगा रिस्पॉन्स, और फिर हम इसको साथ में डिबग करेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं यूजर सर्विस का एक फंक्शन है गेट यूजर फ्रॉम API, उससे डेटा लाओ, डेटा लाने के बाद सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का मतलब होता है ये वेट कर रहा है जब तक उसका डेटा वापस आ नहीं जाता। सब्सक्राइब करो, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए
तो उसको कंसोल लॉग कर दो। ठीक है, अब इसको हम डिबग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, रिफ्रेश, यहाँ पे ये पहुंच गया। अपनी नेटवर्क कॉल्स को मैं एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, ng on init से ये कॉल हो रहा है गेट यूजर फ्रॉम एपीआई, ये जाता है अंदर और ये पहुंचता है इस फंक्शन में, फिर ये करता है http get blah blah blah। नेटवर्क के अंदर फिर वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको प्ले कर दूं तो हमारे पास एक नेटवर्क कॉल गई रैंडम यूजर मी एपीआई पे। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सही है। अच्छा, मेरे पास रिस्पॉन्स वापस आ गया एपीआई से फौरन से। तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स को होवर करूं तो यू कैन सी ये रहा जो हमें चाहिए, जेंडर मेल ब्ला 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 ब्ला, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो अगर हम प्ले कर दें तो यू कैन सी कि हमारे पास ये चीज आई है सर्वर से वापस। तो दिस इज हाउ इजी इट इज एक HTTP कॉल करना। आपको सर्विस बनानी है, सर्विस में HTTP की सर्विस यूज करनी है, उससे कॉल करनी है और वापस कंट्रोलर पे डेटा लाना है सब्सक्राइब करते हुए। अच्छा, अगर मैं नेटवर्क में जाऊं तो यू कैन सी कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया था। इसको हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, तो एक स्टेप डन हो गया। कंट्रोलर सर्विस को इस्तेमाल करते हुए जाता है थर्ड पार्टी एपीआई पे। ठीक है, तो कंट्रोलर से हमने सर्विस का फंक्शन कॉल किया, सर्विस के फंक्शन ने थर्ड पार्टी एपीआई कॉल की, डेटा वापस आया, सर्विस ने कंट्रोलर को वापस दे दिया। इस कंट्रोलर से वापस अब तक टेम्पलेट पे कुछ भी नहीं गया, इसीलिए कुछ शो भी नहीं हो रहा या हमने कुछ शो भी नहीं करवाया हुआ। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि इस रिस्पॉन्स में से यूजर इन्फो निकालेंगे और इसको रिप्लेस करा देंगे। सही है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन और मैं इस रिस्पॉन्स को असाइन करूंगा यूजर इन्फो पे, समथिंग लाइक दिस डॉट यूजर इन्फो नॉट यूजर सर्विस इक्वल्स रिस्पॉन्स। लेकिन एक मसला है, एक मसला ये है कि ये जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है ना, इसके अंदर डायरेक्टली यूजर नहीं पड़ा हुआ होता, इसके अंदर कुछ पहले की साइंस है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, इन्फो और रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इन्फो और रिजल्ट्स है, फिर रिजल्ट्स भी एक एरे है, उस एरे के अंदर जो फर्स्ट आइटम है ये हमारे पास यूजर है। ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, रिजल्ट्स के अंदर एक एरे है और उस एरे के अंदर जो फर्स्ट आइटम है ये यूजर है। तो हमें ये चीज असाइन करनी है यूजर इन्फो को। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम सिंपली अपने इस रिस्पॉन्स में से यूजर निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे यूजर रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स, इसका भी 0 इंडेक्स। ठीक है, तो इसको अब जरा हम रिफ्रेश करते हैं और चला के देखते हैं क्या होता है। यह आया, इसने कंसोल लॉग किया। अब हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स एक एरे है जिसका 0 इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये यूजर में असाइन हो जाएगा। सही है, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें इस यूजर इन्फो में से एक्चुअल जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो शो करानी है। तो हम फिर वक्त सिर्फ नाम और इमेज, ये दो चीजें शो कराएंगे और हम खुश हो जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट्स के अंदर इसका नाम कहाँ पड़ा हुआ होता है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की प्रॉपर्टी है। आई थिंक इसका फुल नेम की शायद कोई प्रॉपर्टी होती है, नहीं है। तो हमारे पास नेम है और नेम के अंदर आईलीन सदर मिस, ओके। तो हमारे पास नेम है और नेम के अंदर फर्स्ट और लास्ट है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द चैट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर, बट फिल वक्त सिर्फ देखें। तो रिजल्ट्स का फर्स्ट आइटम और इस यूजर इन्फो के अंदर, इनफैक्ट लेट मी क्विकली डू दिस, इससे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रिस्पॉन्स हम यूजर इन्फो प्रिंट कराते हैं। डिंग डिंग डिंग, यूजर इन्फो। तो यूजर इन्फो आ गई। यूजर इन्फो के अंदर हमारे पास है नेम और फर्स्ट एंड लास्ट। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। हम जाएंगे अपने HTML के अंदर और यूजर इन्फो के अंदर हम यूजर इन्फो डॉट नेम डॉट फर्स्ट। सही है, इसी तरीके से हम इसके बाद लिखेंगे यूजर इन्फो डॉट नेम डॉट लास्ट। सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। हम बेसिकली जब HTTP क्लाइंट यूज करते हैं तो वो डेटा को, रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, अब हम रिफ्रेश करेंगे, अब हम डिबगर हटा देंगे और ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। तो हमारे पास फर्स्ट नेम भी इस्तेमाल हो रहा है और लास्ट नेम भी इस्तेमाल हो रहा है। इफ आई रिफ्रेश तो एक नया यूजर आ गया। सही है, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसको हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं। व्हाट नेम ऑफ अनडिफाइंड, अच्छा ये नेम ऑफ अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर हमारे पास यूजर कुछ भी नहीं है तो ये फटेगा। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं
एंड दिस मेक्स श्योर कि हमारे पास इस लास्ट को एक्सेस करने से पहले यूजर इन्फो वाकई कुछ हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर इन्फो कुछ भी नहीं होती, फिर हमारे पास डेटा आता है, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। तो व्हाट वील डू इज कि हम यहाँ पे यूजर की क्लास बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे यूजर नेम, अच्छा मैं थोड़ा सा CSS सिंटैक्स भी शो ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में देखेंगे तो आपकी शायद थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी। देन हमारे पास यूजर की इमेज होगी, ठीक है, और इसको इनफैक्ट रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे। तो हमारे पास यूजर की इमेज आएगी, यूजर का नेम आएगा, और क्या आना चाहिए, फोन नंबर ले आते हैं, फोन नंबर ले आते हैं। तो हमारे पास यूजर फोन लेट्स से, तो हमारे पास यूजर डॉट और यूजर इन्फो डॉट फोन की प्रॉपर्टी है। तो अभी हमारे पास फोन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। अगेन हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक ngif लगाएंगे और हम यहाँ पे बोलेंगे यूजर इन्फो। ये ngif क्या करता है, ये नीचे का कंटेंट दिखाएगा ही तब जब हमारे पास यूजर इन्फो में कुछ वैल्यू होगी। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होती, इसलिए ये एरर देता है। अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये तभी दिखाएगा, आप देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा होता, खाली होता है, और जब डेटा आ जाता है तो इट शोज इट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम चाहें तो हम एक और डिव भी बना सकते हैं जिसमें हम बोलें इसका रिवर्स, यानी कि हम बोलें ngif अगर हमारे पास नॉट यूजर इन्फो है, यानी कि यूजर इन्फो नहीं है, तो हम कह सकते हैं लोडिंग। तो आप देखेंगे लोडिंग आता है पहले लिखा हुआ, और फिर हमारे पास डेटा आता है, ठीक है। तो हमारे पास यूजर इन्फो डॉट फोन आ गया। अब हम इसके बाद इसकी इमेज और यूजर का नाम, तो यूजर इन्फो डॉट नेम डॉट फर्स्ट, और इसी तरीके से हम नेम डॉट लास्ट। तो हमारे पास नाम भी आ गया और हमारे पास फ़ोन नंबर भी आ गया। अब हम देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अगर हम इसको ओपन करें और हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर का एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर लार्ज मीडियम थंबनेल तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हम मीडियम यूज़ करेंगे, तो यूज़र इन्फो डॉट पिक्चर डॉट मीडियम, ठीक है। तो सेम गोज हियर, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक इमेज का टैग क्रिएट करेंगे, सोर्स, और सोर्स के अंदर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर बता देंगे यूजर इन्फो डॉट पिक्चर डॉट मीडियम, ठीक है जी। देयर वी गो। अब हमारे पास हजरत की तस्वीर भी आ रही है, सही है। तो हर दफा ये जाता है, एक नया यूजर लाता है और उस यूजर को शो कर रहा होता है। हाउ डज इट साउंड, गेटिंग इंटरेस्टिंग। अब लग रहा है वाकई हम कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, सही है। इफ यू वांट टू स्टाइल इट, यू कैन स्टाइल इट हाउ एवर यू वांट। मैं क्विकली कुछ स्टाइल कर रहा हूँ, you might learn something from it, but yep, let's try it. तो हम बेसिकली यूजर को पैडिंग देंगे। द रीज़न मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ टाइपिंग करते हुए, वो ये है कि मेरा जो कीबोर्ड है यहाँ पे वो स्वीडिश कीबोर्ड है, तो इस पे सारी कीज़ जो है वो स्वीडिश पे मैप हुई हुई हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा है। यानी कि मैं कोई और कैरेक्टर देख रहा हूँ लेकिन जब मैं उसको दबाता हूँ तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है वो। एनीवेज 30 पिक्सल, लेट से इसको 30 पिक्सल दे दिया। फिर हम इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट से गो विद EC। तो हमारे पास इस तरीके का बैकग्राउंड आ गया। फिर हम जो है वो इसकी मैक्स बिट सेट कर देते हैं, लेट से 300 पिक्सल, ताकि ये बहुत बुरा ना लग रहा हो। इस तरीके से हो गया। अब ये सेंटर में चला जाएगा जब हम इसको मार्जिन 0 ऑटो दे देंगे। देयर वी गो, अब ये सेंटर में आ गया। फिर हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, लेट से 14 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, खूबसूरत सा। आई एम थिंकिंग बॉक्स शैडो, नाइस बॉक्स शैडो CSS। एक अच्छी सी बॉक्स शैडो हम कॉपी कर लेते हैं कहीं से। नो नो, there, this one, then we go here, oops,
ओके, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स शैडो है ये। कहाँ गई हमारी ऐप? ये रही। तो हमारे पास एक बॉक्स शैडो आ गया। लेट्स चेंज दिस टू वाइट। देयर वी गो। सही है। तो हमारे पास एक कार्ड आ गया, कार्ड के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम बात करते हैं इमेज की। तो अगर किसी को SCSS में इंटरेस्ट हो तो एक मज़े की चीज़ ये है कि ये यूज़र जो है, इसको मैं प्रीफिक्स रख के आगे की सारी जो चीज़ें हैं उसकी साइंस लगा सकता हूँ नेस्टेड करके CSS में। जिन्होंने SCSS यूज़ नहीं की उनके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि आई कैन जस्ट से दिस और एक हायरार्की में मैं CSS लिख सकता हूँ, जो कि अगर मैं ना करूँ तो मुझे यूँ करना पड़ेगा, यूज़र इमेज। तो ये अलग से स्टाइल लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे एलिमेंट्स का अंदाज़ा नहीं होता। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि आई यूज़ दिस। ये SCSS की काइंड ऑफ पावर है। बॉर्डर रेडियस 50%, इससे ये सर्कुलर हो जाएगा। क्या किया मैंने? ओह यस, ये यूज़र इमेज के अंदर की इमेज को हमें करना है बेसिकली। तो इमेज, देयर वी गो। तो हमारे पास इमेज आ गई। लेट्स यूज द लार्ज वन इंस्टेड। ठीक है, देयर वी गो। अब हम लार्ज यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद आप इसको जो है वो करवाना चाहें या वट आप इसको मजीद स्टाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस बॉक्स शेडो, मैं इसको होवर पे रखना चाहूँगा ताकि वी कैन सी इट व्हेन वी माउस ओवर इट। ठीक है, देयर वी गो। और इस पे मैं कर्सर पॉइंटर भी रखूँगा। देयर वी गो। अब ये लग रहा है कि वाकई कुछ है। और मैं इसमें ट्रांजिशन भी लगाऊंगा। ऑल इज 0.4 सेकेंड या 3 सेकेंड कर लेते हैं। एनिमेशन ऑसम। अली रज़ा और असदुल्ला नूर अब आ रहे हैं। ओके ठीक है जी, कुछ कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा होगा मेरे ख्याल से अब। इफ वी वांट वी आल्सो कैन गिव इट अ बॉर्डर। हम यहाँ पे बोलेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड DC व्हाट, ये क्या हुआ? ओके ठीक है, और अच्छा लग गया। अब बॉर्डर भी आ गई। देयर वी गो। अच्छा जी, तो हमारे पास डेटा आ गया। अब एक फाइनल चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम रैप करेंगे, और जो कि एंगुलर की कोर्स में से या कोर कॉन्सेप्ट्स में से है। एंड दैट इज कि हम चीज़ों पे लूप कैसे करें। एक यूज़र तो आ गया, लेकिन अगर हमें 10 चाहिए होंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूपिंग। ठीक है, और लूपिंग हम करते हैं एरे पे। तो हमें एरे चाहिए होती है और उस हम एरे पे लूप कर देते हैं। ये जो रैंडम की API है, इसमें हम मजीद डेटा भी मंगवा सकते हैं बाय यूजिंग, आई थिंक देयर इज ऑल्सो रिजल्ट्स इक्वल्स करके समथिंग था, या पता नहीं क्या था। लेट मी क्विकली ट्राई टू सी, डू वी हैव डॉक्यूमेंटेशन? यस, रिजल्ट्स API errors, request multiple users। ठीक है, तो ऑलवेज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड सी व्हाट यू कैन डू। तो अगर हम इस URL के आखिर में रिजल्ट्स इक्वल्स टू 50 लगा देंगे तो हमारे पास एक साथ 50 आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट्स राइट हियर फर्स्ट। व्हाट, दैट्स वियर्ड। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए एंड यू कैन सी अब एक से ज़्यादा आ रहे हैं। सही है, तो अगर हम पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काउंट भी आ रहा होता है कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू मेक इट 10। 50 शायद थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और अब इसको हम यूज़ करेंगे अपनी सर्विस में। तो हम वापस यूज़र सर्विस में जा रहे हैं जहाँ पे हम कॉल करते हैं बट नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, दिस इज वियर्ड। ओह दिस इज, सॉरी माय बैड। तो ये रही हमारे पास लिंक और इसको हमने अपडेट कर दिया। अब हमारे पास एक के बजाय आ रहे होंगे 10 रिजल्ट्स। तो लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, हम दिखा अभी भी एक ही रहे हैं क्योंकि हमने कोड ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम जाके ब्रेक पॉइंट लगा लें और रिफ्रेश करें तो यू विल सी कि जब हमारा रिस्पॉन्स आता है तो उसके रिजल्ट्स में अब 10 आ रहे हैं बजाय एक के।
सही है, तो वी एक्चुअली हैव 10। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 वी विल यूज 10, और उसके लिए हम चेंजेस करेंगे अपने यूजर कंपोनेंट में। ठीक है, यहां पे हमारे पास यूजर इन्फो लिखा हुआ है, इसके बजाय हम एक एरे क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलेंगे यूजर्स, और यहां इसको एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, मैं अभी पुराना कोड इसलिए नहीं रिमूव कर रहा क्योंकि फिर हमें शायद जरूरत पड़ जाएगी, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बजाय इसके कि मैं फर्स्ट आइटम उठा के यूजर इन्फो में डालूं, इसके साथ साथ मैं कर सकता हूं दिस डॉट यूजर्स इक्वल्स रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट्स। तो इससे मेरे पास जितने रिजल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे इस यूजर्स की एरे में चले गए। सही है, और लेट्स एक्चुअली लॉग द रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्ले करें तो वी शुड गेट 10 रिजल्ट्स जो कि हमारे पास आ रहे हैं। अब हमारे पास मॉडल बन गया, कंट्रोलर के अंदर हमने वेरिएबल बना दिया, इस वेरिएबल को अब हमें यूज करना है। तो एक तरीका तो ये है भाई कि मैं यहां पे जाऊं और मैं यहां पे लिखूं यूजर्स 0, लेट्स ट्राई टू मेक इट वर्क फॉर द फर्स्ट यूजर। इसी तरीके से मुझे यहाँ यूजर इन यूजर्स 0 यूजर 0 यूजर 0 यूजर 0 यूजर 0। अब अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, फर्स्ट आइटम दिखा रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 10 दिखाने हैं तो मुझे जाके 10 दफा ये कॉपी करना पड़ेगा, यूजर 1 के लिए, यूजर 2 के लिए, यूजर 3 के लिए, 4 के लिए। तो इससे बेहतर जो टेक्निक एंगुलर की है वो ये है कि हम लूप लगा सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड ng_for। सही है, तो सबसे पहले तो हम इस यूजर इन्फो पे रिलाई नहीं करेंगे, हम कहेंगे यूजर्स डॉट लेंथ। अगर यूजर्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, और ये यूजर एरे है तो एरे डॉट लेंथ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। अगर यूजर की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हम ये सारा कंटेंट दिखाएं, वरना हम ना दिखाएं। सही, एक चीज तो ये। और यहां पे अगर यूजर की लेंथ 0 है तो हम लोडिंग दिखाएं, तो ये कुछ चेंज मैंने किया। अच्छा, अब कहानी ये है कि मुझे बेसिकली ये ng_if यूज करना है, लेकिन आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर div अप टॉप। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स से यूजर्स कंटेनर, और ये ng_if मैं इस जगह पे लगा दूंगा। सही, और इस पूरे कंटेंट को मैं अंदर यहां मूव कर देता हूं। तो व्हाट वुड हैपन इज के अगर यूजर की लेंथ 0 से बड़ी नहीं है तो ये सब नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट आई वांट। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यू कैन सी ओके व्हाट, कि हमारे पास अभी भी 10 आइटम आ रहे हैं और अभी भी हम यूजर इन्फो यूज कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूजर इन्फो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन लूप ओवर द यूजर्स एरे। तो द वे आई वुड डू इट, बल्कि इनफैक्ट आई वुड लाइक टू चेंज द नेम, लेट्स से इसको यूजर एरे कह दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। यूजर्स एरे, और फिर यहां जाके भी यूजर्स एरे और यूजर्स एरे। तो ये यूजर्स एरे डॉट लेंथ आ गया। अब फाइनली व्हाट वी वांट टू डू इज कि इस यूजर पे हम लूप चलाएं, तो वी कैन डू ng_for। ये सिंटैक्स होता है जिस तरीके से हम फॉर लूप लगाते हैं, ये उसी का सिंटैक्स है। और हम कहते हैं लेट यूजर आइटम ऑफ यूजर्स एरे। इसका मतलब ये है कि यूजर्स एरे पे लूप चलाओ, जितनी लंबी एरे डज नॉट मैटर, और हर यूजर एरे का जो हर आइट्रेशन के अंदर आइटम होगा, सिंगल आइटम, वो यूजर आइटम में आ जाएगा। तो ये करंट आइटम होगा लूप चलते हुए, और हर दफा जब करंट आइटम हमें मिलेगा तो हम इस यूजर आइटम की इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो मैं यूजर आइटम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाके इसको यूजर इन्फो कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूँ एज वी डोंट नीड इट। तो हमारे पास यूजर इन्फो नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे पास यूजर्स एरे है, और हर यूजर एरे के लिए हमने टेम्पलेट के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम है यूजर आइटम। तो ये लूप चलाएगा इस पे, और हर दफा लूप चलाते हुए हर आइटम के लिए यूजर आइटम लेगा, और हर आइटम की पिक्चर दिखाएगा, हर आइटम का नेम होगा, फोन होगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे चलेगी, एंड देयर वी गो। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक के बजाय 10 या व्हाटएवर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पूरी एरे पे लूप कर रहे हैं और सब आइटम्स को शो कर रहे हैं। और विद दैट बीइंग सेड, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दिस यूजर अ मार्जिन, बल्कि मार्जिन हमारे पास है तो मैं इसको 20 पिक्सल ऑटो कर दूंगा, तो कुछ गैप आ जाएगा इनके दरमियान। देयर वी गो।
सही है जी। तो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स इस तरीके से शो हो सकते हैं, यू कैन जस्ट लूप ओवर देम। अब इमेजिन कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं या वट एवर एप्लीकेशन बना रहे हैं, फेसबुक की तरह की वो एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ आपको फ्रेंड्स शो करना है, तो यू कैन यूज द HTTP कॉल टू गेट द डेटा। उस डेटा को आप अपने कंट्रोलर में असाइन करें, एंड फाइनली यू कैन यूज ng-for टू लूप ओवर ऑल ऑफ दोज एंड यूज इट वंस। आप सिर्फ ये देखें कि इन इतने सारे कोड का जो यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्चुअल कोड सिर्फ इतना सा है। तो वी आर एक्चुअली री यूजिंग द सेम डिव, क्योंकि अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं जो कि निकल के आता है, तो देखें ये यूजर्स कंटेनर है, जो कि है ये यूजर्स कंटेनर, उसके अंदर ये सारे यूजर्स बने हुए हैं ऑटोमेटिकली। तो हर यूजर के लिए एक यूजर का डिव बना हुआ है। तो जिस डिव पे हम एक्चुअली ng-for लगाते हैं, यही डिव रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स। तो ये यूजर वाला डिव है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, और हर यूजर के अंदर उसकी इमेज है, हर यूजर के अंदर उसका नाम है और फोन है, और ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके हमें नजर आ रहा है। तो that's gonna be it. We implemented the increment decrement reset. We also implemented the two-way data binding, और हमने ये जो HTTP कॉल है, ये भी हमने देखी कि हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो with that being said, I think that's probably it. I think I'm going to just show you कि हम लोडर जब दिखाते हैं तो वो कुछ देर तक भी नजर आ सकता है। तो if I refresh, you will see loading for quite a while, क्योंकि अब मैं स्लो 3G को एमुलेट कर रहा हूँ। तो जो हमारी थर्ड पार्टी API है वो अच्छा खासा टाइम लेगी, इनफैक्ट हमारा लोकल भी अच्छा खासा टाइम ले रहा है, बट एसेंशियली हमारे पास अच्छी खासी देर तक लोडर नज़र आएगा और फिर हमारे पास डेटा आएगा। क्वेश्चन आया है, वेयर कैन वी गेट दिस डेटा सेट? आई थिंक यू मीन द कोड। तो कोड हमें बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि ये कोड जाएगा गिटहब पे, मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे, और उस पर जो DSC का इवेंट है उसके नाम से आई थिंक ये बनेगा, और ये जो वीडियो अपलोड होगी ये उसके अंदर भी लिंक्ड होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई वुड से यू विल गेट इट। और फिर ये जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं ये भी शेयर कर देंगे सेम इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक वी शुड बी गुड। ओके, ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम मैंने सोचा नहीं था। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर, रिफ्रेश, नो, देयर वी गो। अब इसके बाद यहाँ से हम जो है वो करेंगे इसको स्लो 3G, और हम चलाएंगे रिक्वेस्ट। नाउ यू सी लोडिंग आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और जब हमारे पास डेटा वापस आया रिजल्ट्स का, तो लोडिंग हट गया, बूम, देयर वी गो। So yeah, I think that's going to be it for today. The people with their names, images and cell number, you can get this from this random user API. आप यहाँ randomuser.me लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, and then you can use this endpoint for the data. So this is all included in the video, so you can also look back after this is being uploaded. So having said that, I think that's going to be it for today. I'm open to any questions जो आपके जहन में हो regarding Angular, regarding the market of Angular,